नमस्ते. Welcome to Courtroom by TLOI. Don't worry, आप बिल्कुल सही चैनल देख रहे हैं. My name is Anushree Mahindra and I am a student of law at the Faculty of Law, Delhi University. I know हम सब सहज सर को expect कर रहे थे अभी हमारी screens पे, but sir was kind enough to give me this amazing opportunity to interact with a senior from our field, Miss Sanya Darakhshan Kishwar, who has some great advice for all of us, all the viewers, which you will see during the course of this interview. But before we jump to that, I just wanted to give you a small heads up कि जब मैं सानिया मैम के साथ ये इंटरव्यू कर रही थी via Zoom call, due to some technical glitch मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई. As a result, आप मेरी आवाज जरूर सुन पाएंगे, asking all the questions that usually students like us have while studying LL.B. But आप मेरे को देख नहीं पाएंगे. But irrespective of that, I am sure this interview will be extremely helpful to you. So do watch it. And I would really like to thank Sahad sir for this amazing opportunity. And अब आपके सामने interview शुरू होने वाला है. So hello and namaste. Welcome to Courtroom by TLOI. I know all of you are expecting Sahad sir's face on your screens right now, but sir was kind enough to give a student like me this great opportunity to interact with a senior from our field of law who has some remarkable achievements and can be a great example for us. And in that spirit, let me first introduce you all to Miss Sanya Darakhshan Kishwar. She is an assistant lecturer at Jindal Global Law School, Sonipat. Before we come and talk to her, I would just like to tell you all a little about her. She is a human rights enthusiast, and to start with, which is a huge deal for I think all of us here today, with huge sense of inspiration. But to tell you a little more about her, she did her integrated bachelor's in law and science from Central University of South Bihar. She holds not one but two LLM degrees. The first was her master's in general laws from the Pennsylvania State University, that is in USA. And then she passed her LLM with distinction in international human rights law from the University of Leeds in UK. She's a recipient of the Best Law Student of India Award of 2019. And, she even received various distinctions in her dissertations and all the projects that she was a part of during the course of her university years. And currently, Sanya ma'am is mentoring this project called PVoice, which is a student-led initiative to make commoners aware of their rights, which is something that I'm sure, ma'am, we all salute. So a very welcome to this interview, and thank you so much for being here. Thanks a lot, Anushree, for this kind introduction. And I also thank this platform for allowing me to interact with the students. And I would still say that I am a student even now, partly because I am enrolled for my doctoral studies, and partly also because every one of us, each one of us, remain a student lifelong. So the learning process never stops. No, lovely. Sure. No, I completely agree there, ma'am. So just to define this aim of the session today, कि आज हमारे session में हम mostly focus करने वाले हैं to help basically students like me who are still contemplating कि LLM करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. So we're basically going to talk to you about that. What is the cost effectiveness of LLM? Benefits क्या है dual LLM degree के, because you are our first person on the panel who has a dual LLM degree. So we would love to know more about that. And also a very huge emphasis on the importance of LLM in the academic field. So just to start with that, my first question to you is that when did you make up your mind कि नहीं LLM करनी है, and was teaching the first preferred field, or was it the first priority कि नहीं अगर LLM करना है तो teaching में ही घुसना है? So what was the thought process there? तो सबसे पहली बात तो I wasn't clear कि LLM करना है कि नहीं, even in the last semester. Second last semester, I would say. It was only in the second last semester that I came across this competition, an Armada of Men and Sark Moot Court competition. And I saw that it's a lucrative option because it gives the choice to one student being chosen as two actually, one male and one female, being chosen and adjudged as the best law student. And they get a full tuition scholarship. तो उस टाइम हमको लगा कि अच्छा ये तो this is something I should think about.
तो दैट्स व्हेन द थॉट प्रोसेस स्टार्टेड। अब वहां पर एक गलती हमसे ये हुई कि आई डिडंट स्टॉप एंड थिंक कि if at all I want to pursue my LLM abroad, will Penn State be the university that I want to be at? Okay. तो वहां पर तो लग रहा था कि बाहर तो कभी गए ही नहीं है, कभी बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स गया छोटा सा शहर है, उस पर तो लगा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर फुल्ली फंडेड है तो और भी बड़ी बात है। वहां पर दो गलतियां हुई। एक तो हमने देखा नहीं कि ये यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है। सो देयर इज अ QS वर्ल्ड रैंकिंग, एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तो सबसे पहला चीज तो इफ एट ऑल एनीवन वांट्स टू स्टडी अब्रॉड, ये इस ऑप्शंस को देखने से पहले कि ये कंपटीशन है या एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, उससे तो सबसे पहला चीज ये देखना चाहिए कि वो QS वर्ल्ड रैंकिंग को खोल के देख लीजिए। उसमें यू कैन सी टॉप 10 में अप्लाई करना है, टॉप 50 में करना है, टॉप 100 में जाना है, एक्सेट्रा। ये सारी चॉइसेस आपको देख लीजिए। तो ऑफ कोर्स टॉप, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन द आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, so there are certain requirements, lesser funding options as well. To make an informed decision, that will depend upon your grades. So you are the best judge to understand कि किस रैंक की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। बट ये बेटर रहेगा कि अगर आप बहुत अच्छे भी स्टूडेंट हैं तो भी टॉप की यूनिवर्सिटीज में बस नहीं अप्लाई करें। ये नहीं कि सिर्फ टॉप 10 में ही एप्लीकेशन भेजा, also send applications to some lower ranked universities as well, but not the universities which are ranked way lower than 150 or something. Those wouldn't be very beneficial. अगर उन यूनिवर्सिटी से बाहर जाके करना है तो उससे बेहतर है कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से कर लीजिए। Right, that's what I was thinking. हाँ जी। Yeah, that's what I was actually going to ask, that if you feel that जैसे कोई बच्चे हैं जो बाहर जाकर उनको लगता है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, so doing an LLM in India, even you agree, would be a better idea. Exactly, क्योंकि इसका सिर्फ for the sake of doing an LLM abroad, अगर आप 500 रैंक की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहां पर आपको पार्शियल या बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, आपके पास चलिए पैसा है बट आप जा रहे हैं सोच के कि चलिए आप बाहर की तो यूनिवर्सिटी रहेगी, that won't do you any good. Candidates having an LLM from a good university in India will always be preferred. Of course. तो ये है। और इसके अलावा मेरे साथ जो हुआ वहां पर तो ये गलती तो ये हम किए कि आई डिडंट सी द रैंक। ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, दैट देयर वाज नो वन टू गाइड मी कि और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट वाज द ओनली, आई मीन आई डिडंट अप्लाई, वो तो थ्रू द कंपटीशन हुआ, बट if I had someone to guide me through the process, then I would surely have applied to other universities. Okay. तो वो एक process था, बहुत बड़ी गलती हमसे हुई कि that I didn't do. वो application process ही में मेरी कमी थी। It depends upon how well you can research, मतलब, and also how many people are there to guide you through the process. No, of course. And what about teaching? Was that something जो starting से था कि आपको teaching में जाना है, या कभी litigation या ये सब का भी idea था जैसे usually LLB students का होता है? Teaching तो कभी भी ऐसा नहीं सोचे थे, but the thing was that मेरा ये thought process था कि LLM करके, पहले तो था कि हम तो LLM ही नहीं सोचे थे। अब जब सोच लिया कि चलो LLM करना है तो टीचिंग नहीं, हमने तो सोचा था कि लॉ फर्म ज्वाइन कर ले, हाँ जी, आर्बिट्रेशन ही की फील्ड में। तो दैट्स व्हाट आल्सो आई डिड प्राइमरीली एट पेन स्टेट, बट देन द सेकंड चॉइस दैट आई हैड इन माय माइंड वाज जुडिशरी। ऑफ कोर्स, राइट। उसके बाद कहीं मेरे दिमाग में था कि अच्छा फिर वापस आके यूजीसी नेट का एग्जाम दे देंगे एंड लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर बिहोल्ड्स। बट देन यही था थॉट प्रोसेस। आई वाज वेरी सर्टेन कि अभी तो इसके बाद लॉ फर्म में ही करेंगे, बिकॉज द रीजन व्हाई नाउ व्हेन आई reflect back upon it, the reason why behind this was because most of my colleagues in my classroom were opting for law firm jayenge. It was just because of that. Yeah. Okay, great. So जैसे आपने बताया कि आप पहले पेन स्टेट गए थे अपने जनरल LLM के लिए, and then you went to UK, am I right, for your specialization?
So what is the difference between colleges say in UK and USA? Because that is one of the main contenders, I feel, the two main contending countries जहाँ पे सब LLM करना चाहते हैं. So how was your experience in both, and which one do you think is preferable for, say, Indian students in terms of everything? UK preferable रहेगा. I also feel that because the course structure and everything is similar to the Indian structure. I would say that the Indian structure is similar to the UK because most of the things we have copied from there. Right, okay. तो adapt करना easy रहेगा. अब US का जो स्टडी का पैटर्न है that's a bit different. तो वहां पर आपको हो सकता है थोड़ा सा इनिशियल टाइम में अडाप्ट करते ही करते you might lag behind. Right. That's one of the things. उसके अलावा depends on the university. तो because I was at Penn State, तो I wasn't very happy with the course structure per se. वहाँ we didn't have dissertation writing. That was the thing that I missed. We didn't have any specialization, at least for my time. And I guess the next year as well, we didn't have any specialization. तो हम लोग JD यहाँ के LL.B students होते हैं, वहाँ का JD होता है, उन लोगों के साथ ही बैठते थे हम लोग, same class and same course and everything. So I felt that I was basically repeating my LL.B, which was not doing me any good. Right. That was when I thought कि चलो कुछ ऐसे papers choose कर लेते हैं जिससे कम से कम specialization तो नहीं मिले, but उसका when any recruiter looks at those choices of papers that I made, that recruiter might have a sense that I'm interested in the field of international law per se. So I chose my papers वैसे ही, international law, international commercial arbitration, international criminal law, इस टाइप के. उसके अलावा कुछ अलग पेपर्स भी थे, jurisprudence वगैरह वगैरह, बट स्पेशलाइजेशन नहीं था. ऐसा नहीं था कि ह्यूमन राइट्स में ही स्पेशलाइज कर रहे हैं, सारे पेपर्स ह्यूमन राइट्स थे, ये था. और दूसरा चीज, अगर यूएस में एक बेटर ऑप्शन ये हो जाता है कि ओपन जो चॉइस रहता है पेपर्स का, अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटी. अब ये अगर LLM कराता है तो वहां स्पेशलाइजेशन भी, हार्वर्ड में भी स्पेशलाइजेशन. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट पेन स्टेट एंड अदर यूनिवर्सिटीज दैट आर ओपन अबाउट देयर स्ट्रक्चर. तो वहां है कि यू कैन ऑल्सो चूज यूएस वाले पेपर्स एंड 6 या 8 क्रेडिट्स कुछ होता है, उसको आप कंप्लीट कर लोगे, देन यू विल बिकम एलिजिबल टू appear for their bar examination. अच्छा, वो कुछ एग्जामिनेशन दे के एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो you can appear. तो अगर आपको मन है कि आप बाहर प्रैक्टिस करो तो यूएस इज एन इजियर ऑप्शन. LLM के साथ साथ साइड बाय साइड आप ये भी कर लो. यूके में इट विल बिकम डिफिकल्ट. यूके में डिफिकल्ट इसलिए रहेगा क्योंकि आपको अगर यहाँ लाइसेंस है तो आपके लिए इजी है. पहला तो आपको यहाँ से लाइसेंस अगर है तो थोड़ा इजी होगा, वहां उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा. तो उसका भी प्रोसेस है, 2 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कराइएगा. तो वहां 2 साल आपको वो लोग अपना लॉ पढ़ाएंगे. ऐसा नहीं है कि यूएस जैसा 6 क्रेडिट वगैरह वगैरह वाला, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेंदी हो जाता है अगर आप यूके में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो. ओके, वहां भी 2 अच्छा या दो. I'm just trying to make a point here that so basically you would suggest कि अगर किसी को यूके जाना है तो वो कुछ साल यहाँ प्रैक्टिस करे, अपना लाइसेंस ले एंड फिर जाएं अगर उन्हें बाहर सेटल होना है, because a lot of kids go immediately after LL.B, so that might not be as beneficial for people who want to go to UK जो वहाँ पे बेसिकली सेटल होना चाहते हैं. ओके, ग्रेट. नहीं, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस ही करें, लाइसेंस रजिस्टर करवा लें, करवाने और अपना जी, ठीक है. हाँ जी, इजी हो जाएगा उससे प्रोसेस. अगर वहीं आपको प्रैक्टिस करना है तो वहां भी बैरिस्टर और सॉलिसिटर का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है. बैरिस्टर जो स्टैंडिंग प्रैक्टिस करेगा, सॉलिसिटर तो लॉ फर्म्स में भी, तो दोनों में थोड़ा सा कम होता है टाइम का डिफरेंस. आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस, बट डिपेंड करता है. हाँ, आप रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए, अगर आपको वहां सेटल ही करना है, वही प्रैक्टिस करना है. So did this thought ever occur to you that you want to settle abroad? आप US भी गए, आप UK भी गए. I'm sure आपके काफी colleagues होंगे जो रह भी गए होंगे वहाँ पे, who are working there. So but were you said that आपको वापस ही आना है या फिर वहाँ पे रहने का कोई कभी सोचा था? नहीं, I was बिल्कुल set in my mind कि जा रहे हैं तो वापस ही आएंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं. वहां जाके जब लोग चूज कर रहे थे पेपर्स, तो
gave it a thought, क्या would I want to practice bar exam, देना चाहेंगे कि नहीं? Then I thought कि नहीं हो पाएगा, अब इधर फिर उधर नहीं हो पाएगा, because I'm very connected to my family, तो it was my personal decision. तो उसके बाद तो फिर I also participated in the Wismoot. उस साल हम लोगों की टीम जीती भी थी, विनर भी थी. उस वक्त I was thinking कि अच्छा मे बी बार एग्जाम नहीं तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ही की फील्ड में कहीं बाहर थोड़ा जॉब देखते हैं, सीख करते हैं, थोड़ा कनेक्शन. But then थोड़ा तो issues था. I didn't like US personally. I'm not saying that this is a generalized view, but मेरा personal experiences थोड़ा अच्छा नहीं था, racial discrimination, and I was dragged to a point where I had suicidal tendencies. So I personally didn't want to stay in US. अब ये देखिए बहुत इश्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ भी. आप छोटे जगह से जाइएगा, एडजस्ट करना डिफिकल्ट होता है. लोग 10 तरीके के कमेंट्स डालेंगे, ब्राउन इंडियंस आर कॉल्ड ब्राउन, और भी बहुत सारे किस्म की चीजें. तो my suggestion, because I have gone through all of that, my suggestion is don't take load of anything. वो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, what dragged me to that situation is I am a very sensitive person. I was a very sensitive person at that time. So I used to take note of everything, trying to find ways to improve myself. So I used to think कि कुछ मेरी में कमी होगी and they are superior, इसी वजह से ऐसा है, but that's not it. If you are there for a reason. So be very bold, be assertive. If you feel that you are being bullied, complain against it. That's a thing that I didn't do. तो ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि वहां आप जाओगे तो कोई हेल्प कर ही देगा. So you have to be there all by yourself. UK, अब तो I was in Leeds, तो UK का experience थोड़ा क्या काफी better था. Inclusive environment है. I'm not talking about London, वहाँ की कोई university में हम गए नहीं, तो I can't comment upon that. But Leeds was a semi-urban area. वहाँ का environment inclusive था. I never felt discriminated. I felt that my views were included and appreciated as well. तो जहाँ US में मेरी English की accent पे बहुत comments हमको मिलते थे, UK में I was appreciated because of my fluency. And ये सारे confidence build करते हैं. I went to UK at a stage when I was almost shattered with regard to my confidence, and वो course, that time I spent in UK helped me regain my confidence की नहीं, and I think that it was a very good decision. No, great. I mean, that's exactly जो हम जानना चाहते हैं ये चीजें, because I'm sure ये चीजें अभी भी होती हैं even in US. So, and a lot of people have told us this. So I'm actually glad that you talked about this. And honestly, more power to you. Super. I mean, congratulations for coming out of it so beautifully. And I am glad that you still had the strength to go back out again and study again. So that's great, genuinely. And yes, of course. So this is one thing that we all wanted to know: कि US and UK में environment wise कैसे differences हैं. Because सबने scholarship की या money की इसकी तो बातें करी हैं, but these things are also very important because आप सब छोड़ के जा रहे होते हो वहाँ पे, आप अकेले होते हो. So एक अच्छा environment होना is very important. So thank you so much for that. And okay, so another thing that I really want to know, as someone who might be interested in the academic field later, how has LLM helped you there? I know LLM is essential to get into the academic field, but how has, and especially how having a dual degree in LLM helped you there? If you could just So when I came back after my LLM from Penn State, I started to apply to all law firms, Tier 1, Tier 2, Tier 3, everywhere. I sent almost more than 50 applications, got rejections, didn't hear back from many. I thought that this LLM is of no use. I started to feel that. I did not have academia in mind at that time, also because net का time pass हो गया था तब तक, तो एक साल wait करना ही पड़ता. अब हम next साल net के लिए appear करें, उसका और इस time के बीच क्या करना है, घर पे बैठे क्या करें, समझ में नहीं आया था. I applied everywhere. ऐसा नहीं है कि नहीं application नहीं दिया.
अब सोचा हम कि एक एप्लीकेशन देखें दूसरा एलएलएम का जिसमें स्पेशलाइजेशन रहे, एंड सेकेंड थिंग आई ऑल्सो थॉट कि लेट्स चेंज माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. आर्बिट्रेशन में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और आई ऑल्सो फेल्ट कि आर्बिट्रेशन ऐसा फील्ड है जहां हम शायद सस्टेन ना कर पाए खुद को, बिकॉज इट्स मोर कॉर्पोरेट टाइप का. तो थोड़ा सा वो ऑल्सो इट वाज अ पर्सनल चॉइस. ठीक है, हाँ जी. डिपेंड्स कि आप किस में कंफर्टेबल हैं. वो बिजनेस वाली मीटिंग्स वगैरह टाइप का थोड़ा सा आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. तो हमने सोचा कि चलो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं. ह्यूमन राइट्स वाज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू स्पेशलाइज इन. तो हमने सोचा कि चलो एप्लीकेशन देते हैं. अब उस टाइम तक सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज की ज्यादातर एप्लीकेशंस का डेट निकल चुका था. 5-6 यूनिवर्सिटी थी जिसमें मतलब 5-6 से ज्यादा यूनिवर्सिटी थी थोड़ा लो रैंक वाली, और यूके ही हम चाह रहे थे. आई डिडंट वांट टू गो बैक टू यूएस. तो उसमें देखा हम कि चलो लीड्स की है खुली हुई, एक दो और यूनिवर्सिटीज थी, तो हमने रैंक कंपेयर किया. Of course, as I said, बाकी यूनिवर्सिटीज की तो डेट निकल ही चुकी थी. So I compared their ranks and I thought let's give it a try. So I applied. तो applications के बाद तो आ गया, but it was again I would say I wanted to go for the second LLM to make myself more employable. ये aim था मेरा कि चलो वापस इस बार जब आएंगे अब जॉब लग ही जाए. And also I came to know about Jindal Global कि वहां तो आपको मैंडेटोरली एक आपको एलएलएम अब्रॉड से एक डिग्री अब्रॉड से है. तो आई ऑल्सो हैड अप्लाइड देयर पेन स्टेट की डिग्री के साथ. उस वक्त आई डिडंट गेट रिस्पॉन्स. तो आई ऑल्सो थॉट मे बी एक सेकेंड डिग्री से आई मेक माई सेल्फ मोर एम्प्लॉयबल. उस सेकेंड डिग्री से आई ऑल्सो शो व्हाट्स माई एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. आई थॉट यहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता है, इस वजह से आई डिडंट हियर बैक. तो आई वेंट. बट यहाँ मेरा ये गलती ये हुआ मेरे से कि आई एक्सेप्टेड द ऑफर इवन दो आई न्यू कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मी अ फुल स्कॉलरशिप. तो पार्शियल पे आई वेंट. एंड दैट कॉस्ट मी अ लॉट. मेरे नाना उस वक्त जिंदा थे, तो ही सोल्ड हिज लैंड, अ पार्ट ऑफ हिज लैंड, एंड ही फंडेड माई स्टडीज. तो जो भी मतलब पार्शियल के जो हुआ था. अब पेन स्टेट के वक्त भी कुछ खर्चा तो आया था बिकॉज इट वाज जस्ट फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप एज अपोज टू अदर स्कॉलरशिप्स. बड़े स्कॉलरशिप्स जो रहते हैं उसमें सब इंक्लूडेड रहता है, आपका ट्यूशन, लिविंग एक्सपेंस, अकोमोडेशन, हाँ आने जाने का एक बार राउंड ट्रिप, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो दोज आर बिग स्कॉलरशिप्स, फुल ब्राइट, ये सब वगैरह वगैरह जो आप, या यूनिवर्सिटी के भी फंड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये सब वो अपने ट्रस्ट से भी देते हैं. तो ये बिग स्कॉलरशिप्स है, कॉम्पिटिटिव होते हैं, बट दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस. डेफिनेटली. तो इस वजह से इस बार जो था उस बार भी कॉस्ट आया था, लेकिन कम था कंपैरेटिवली क्योंकि ट्यूशन तो फुल कवर्ड ही था. बट इस बार थोड़ा काफी ज्यादा था, तो ही वो तो उस तरीके से हो गया. सो आई वाज सेट इन माय माइंड कि अब इसके बाद आई एम नॉट गोइंग अब्रॉड, ये लास्ट है बस. Also my grandfather passed away, so उसके बाद तो और भी नहीं जाना है. बट हाँ ये था. जब हम वापस आए, I applied to Jindal again. And luckily I got the job. So all of this pattern makes me feel कि dual LLM for me was to make myself more employable. Now how can this be avoided? ये आप avoid कर सकते हो. पहला ही LLM आप अगर बाहर से करना चाहते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लो. अब अच्छी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, नॉटिंघम, एडिनबरा, लाइडन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है यूके में. अगर आप देखिए यूएस से करना चाहते हो तो बहुत सारी, मतलब यूपेन है, हार्वर्ड है. अब उतना भी ऊपर नहीं जाना चाहते हो तो और भी यूनिवर्सिटीज है. उससे भी अलावा एक और ऑप्शन है, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं. अगर आप बाहर सेटल करना चाहते हो तो कनाडा, उसका इमिग्रेशन भी इजी है. तो उधर की भी यूनिवर्सिटीज, देयर पैटर्न इज अ बिट सिमिलर टू यूएस बट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स UK मोड व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, डिसर्टेशन वगैरह ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में. राइट. ओके. तो वो आप कर सकते हो एक्सप्लोर. अगर उससे भी थोड़ा सा बिल्कुल एकदम नया पैटर्न आप देखना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज भी है. दे हैव
lesser funding opportunities, but if you want to explore that, you can see that as well. और बहुत सारे स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में करना चाहते हैं, नीदरलैंड्स वगैरह. अब वहां बहुत एक्सेसिव कॉस्टली पड़ जाएगा अगर आपको ऐसी स्कॉलरशिप मिल रही है पार्शियल. अगर फुल ट्यूशन भी है तो वहां का लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है. तो वो सारा अपना फिनांस को देख के कर लीजिए. बट नीदरलैंड्स, यूरोप की कंट्रीज, they are very lucrative, specifically if you are going for human rights, if you are going for air and space law, तो लाइडन वगैरह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है. जिनेवा एकेडमी, ये सारी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का बहुत अच्छा है वहाँ. तो ये सारा आप अपना कर सकते हैं. वहाँ इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप भी रहता है, फुल रहता है, उसके एप्लीकेशन अलग रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यूके की यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आता है, मास्टर्स 1 साल का. Okay. उसका अलग एप्लीकेशन होता है. बट व्हेन यू अप्लाई फॉर LLM इन द यूके यूनिवर्सिटीज, वो यूनिवर्सिटी अपने फंड, ट्रस्ट के जो फंड होते हैं उसके लिए भी आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे. टॉप की यूनिवर्सिटीज जो है वो ज्यादातर ये जो स्कॉलरशिप ऑफर करती है, ये फुल स्कॉलरशिप ही रहता है. फुल दैट इज इंक्लूड्स ऑल द 3 कंपोनेंट्स. बट हाँ, कुछ पार्शियल भी रहता है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल. ओके, सो आपकी जो दोनों LLMs थे, दोनों 1 ईयर थे या एक 1 ईयर और एक 2 ईयर था? दोनों 1 ईयर थे. 1 year. And do you think that builds a kind of a pressure on the student, because एक ही साल में आपको adjust भी करना है, you need to get used to the new pattern. So would you recommend that kids should opt for 2 years instead of 1 year LLM in your experience? I would say no, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और आ जाती है. बाहर के लिए स्पेसिफिकली ज्यादा टाइम रहना पड़ेगा बाहर, ज्यादा कॉस्ट आएगा. और जो ज्यादातर ये स्कॉलरशिप्स है, जैसे कि कॉमनवेल्थ भी, वो सिर्फ 1 ईयर मास्टर्स के लिए ही देता है. और ज्यादातर आपकी जो यूनिवर्सिटीज बाहर रहती है 1 ईयर, 2 ईयर हमको लगता है चाइना, कजाकिस्तान, ये एरियाज में कुछ है 2 ईयर के. बट आई एम नॉट श्योर यूके की कौन यूनिवर्सिटीज में 2 ईयर रहता है. बट देन द मेन थिंग इज दैट if you are not able to adjust to the surrounding, then you will have to expose yourself for 1 more year to that surrounding. Right. So ये जल्दी ही करके आ जाओ. But you can always opt for a semester extension. तो पूरा 1 साल नहीं, एक 6 months का extension मिलता है. Some universities also offer 3 months extension if you are feeling very pressure to complete your dissertation. तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा. 3 month का extension, 6 months का extension, ऐसे हो जाते हैं extension. So that's also what you can opt for. Okay, lovely, great. So now considering you also teach students, so I'm sure आपके पास ये questions आते ही होंगे. So as someone who is still again figuring out कि LLM करनी है कि नहीं करनी, when do you think the preparation should start? Also grades का कितना मायना रखता है बाहर जाने में, कि because I'm sure जैसे एक तो ये बहुत बड़ी एक misconception है लोगों की कि अगर आप NLU से हो या जैसे DU से हो तो आपको everyone's going to be ready for you with open arms कि आप तो आओ. बाकी यूनिवर्सिटीज को लगता है कि नहीं, हमारे को तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट, एंड व्हेन शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड हाउ शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग? अभी ग्रेड्स का और NLU वाला जो बात बोला है आपने, तो उस पे एक हम बताना चाहेंगे कि क्यों ऐसे ये NLU वाले स्टूडेंट्स ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटीज में जा पाते हैं. वो इसलिए क्योंकि देयर आर पीपल टू गाइड देम. उनका CV बनाने से लेकर कवर लेटर से लेकर हर चीज रिव्यू करने वाले एक्सपर्ट आइज हैं, जो कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा मेरा यूनिवर्सिटी जो था, वो हमारे जैसे स्टूडेंट्स के पास वो नहीं रहते हैं, विच लीड्स टू रॉन्ग डिसीजंस, just as I explained. तो ये एक डिस्पैरिटी तो है, बट हाउ कैन वी ब्रिज दैट? तो ये तो है कि आप ये ध्यान में रखो कि सारे बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो एप्लीकेशन होते हैं 1 साल पहले से शुरू हो जाते हैं. तो इफ यू वांट टू गो फॉर एन LLM just after the completion of your LL.B, 1 साल पहले से start in your 4th year. Okay. सब एप्लीकेशंस में बहुत लेंदी एप्लीकेशंस रहते हैं. 5 year students 4th year और 3 year students 2nd year की completion. बिल्कुल. तो अब देखिए उसको प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, बहुत सारी चीज, बिकॉज रिकमेंडेशन लेटर्स ही मांगते हैं वो लोग. कुछ यूनिवर्सिटीज
3 या 4 recommendations recommendation letters मांगते हो. If you think that deadline आ जाएगी तो कर लेंगे, that won't be possible. Right. Some of the universities like Oxford, they even want a short proposal, 300 words का. What do you want to work upon वहाँ? Dissertation आप किस intended topic में, Leiden वगैरह ये सारी universities भी एक short proposal भी मांगती है. उसके अलावा writing samples मांगते हैं कुछ universities. तो आप ऐसे भी लिख रहे हो साइड बाय साइड. प्रोसेस बहुत लंबा है. कुछ यूनिवर्सिटीज का फिनेंशियल स्कॉलरशिप, जो फिनेंशियल एड का स्कॉलरशिप का जो होता है पूरा प्रोसेस, वो सेपरेट रहता है. तो अलग फॉर्म भी आप भर रहे हो, तो ये भी प्रॉब्लम है. अब उसके अलावा जो ये बड़े स्कॉलरशिप्स है, कॉमनवेल्थ हुए, फुल ब्राइट हुए, इसका एप्लीकेशन और भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है. तो 4th ईयर से अगर आप नहीं स्टार्ट करोगे तो पता चलेगा कि ओके, आई हैव अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटीज बट आई मिस्ड द डेडलाइन फॉर माय स्कॉलरशिप्स. नाउ व्हाट डू आई डू? ठीक है, तो ये है, स्टार्ट रिसर्चिंग, टेक नोट ऑफ द डेडलाइंस. एक ऐसा डायरी बना लो, वहां डेडलाइन हर यूनिवर्सिटी का लिख लो. जनरली हर साल अराउंड द सेम टाइम ही एप्लीकेशन ओपन होते हैं, नॉट एग्जैक्ट, बट हाँ, अगर किसी का अगस्त में ओपन हो रहा है, जनरली अगस्त ने तो मैक्सिमम सितंबर में खोल ही देते हैं एप्लीकेशंस. इतना अर्ली तो स्टार्ट कर ही देते हैं. तो ये आप लोग देख लो, दे गिव यू इनफ टाइम टू अप्लाई. 6 से 7 महीना का एप्लीकेशन तो खुला रहता है आराम से. तो you should start this early depending upon where you want to go. अब इंडिया में अगर करना है तो I would say 4th ईयर तक तो दिमाग में आप बैठा लीजिए कि कहाँ करना है, इंडिया में, बाहर में, क्योंकि दोनों चीज साथ में if you will want to take तो थोड़ा प्रेशर हो जाएगा एंड मोमेंट डिसीजन पे. तो if you think कि हम दोनों ही जगह अप्लाई कर लेते हैं, that will be the best decision. क्योंकि अगर बाहर कहीं नहीं हुआ, then you will be stuck with nothing. तो साइड बाय साइड क्लैट का प्रिपरेशन भी आप चलाइए और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस वगैरह सबका. गिव एज मेनी, अपीयर इन एज मेनी एग्जामिनेशंस एज यू कुड. आई डिडंट डू दैट. मैंने गैम्बल प्ले किया था. आई थॉट कि अगर नहीं हुआ वो पेन स्टेट वाला कंपटीशन तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट आई थॉट, बट आई डिडंट अपीयर फॉर क्लैट. आई डिडंट प्रिपेयर. आई वाज लाइक अगर नहीं होगा तो फिर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे. आई वाज पता नहीं, I was a bit lost at that time. तो ये don't do that. Start your preparation as well. साथ में applications भी भरते रहो, कोर्स वर्क तो आपका चल ही रहा है. तो ये सारी तो preparations early start, जितना early start करेंगे उतना बेहतर है. और main thing ये है कि LinkedIn पे या जिस भी तरीके से, if you can connect to candidates who have successfully completed their masters from those universities, they can be very helpful. बहुत लोग अपना पर्सनल स्टेटमेंट भी शेयर कर देते हैं, तो दैट्स आल्सो वेरी हेल्पफुल. तो काफी यूनिवर्सिटीज पर्सनल स्टेटमेंट भी मांगती है. एंड पर्सनल स्टेटमेंट आई मस्ट से यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं. तो पर्सनल स्टेटमेंट दे जस्ट कीप ऑन सेइंग कि आई हैव अचीव्ड दिस दैट. उसका जो फॉर्मेट होता है, इट्स वेरी ट्रिकी. दैट्स वेयर दे असेस यू. सो इट शुड बी more like a semi-formal narration of the life of your story, while highlighting what made you choose to study, to go for higher study. Why are you applying for this LLM? Why should the university admit you? I mean, why? What is, आपका क्या है ऐसा exemplary achievement? तो वहाँ you can show your academics, extracurricular achievements, या अगर आप leadership skills present करते हो, कोई organization में आप काम करते हो, etc., वो सारी चीज. उसके अलावा how clear are you about your career goal? तो ये LLM करने के बाद आप क्या करोगे? तो you should also be clear about that. You should also show कि how well informed you are about that university and that particular faculty that you are applying to. जैसे कि अगर आप एयर एंड स्पेस लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाइडन में, so it will be very good कि अगर आप बेसिक रिसर्च कर लो कि 1-2 प्रोफेसर्स, 4-5 प्रोफेसर्स का वहाँ वर्क्स देख लो, then accordingly show that you are well informed of the faculties, their works, their concentration, the environment, the opportunities there. Okay. So ये थोड़ा सा, it will be very helpful for if you take those things in mind. Definitely, this is great. I don't think अभी तक किसी ने ये बताया था. So this is a very, very good point. Thank you so much for that. And in addition to all of this,
I mean typical Indian mindset, but grades का कितना role play होता है? जैसे आपने बोला statement of purpose या personal statement जो है, that's extremely important, and thank you for guiding us with the whole thing. But one very major issue that like even I as a student right now face is that because एक तो exams online है, seriousness सबको पता है कितनी आ रही होती है, you know, even when you're studying. So, but marks is like, नहीं, marks चाहिए, you know, you need a certain point percentage also, I'm sure, to go abroad. So, what do you think is like, how important are marks in this entire scenario of like getting through? Yeah, thank you for that. I actually missed that question in previously. So grades ka see, for it depends upon the rank of university again. Okay. Minimum to every university will have 50 to 55. ये तो minimum ही लेके चलो. Don't expect to study abroad if even if it's a very low ranked university. Don't expect कि वो 40 or 30, 40, 45, 50 को ले लेंगे. They'll always have good applications. Better applications. So 55 तो minimum ही है. Now when I say minimum, I wouldn't say कि 55 वालों को they will prefer. क्योंकि वहाँ application 70, 80, 90 वगैरह वगैरह का जाता है, तो grades तो बहुत important है बाहर के लिए. अभी इंडिया के लिए तो इंडिया को तो सबको पता है कि हम लोग का हाल क्या है, तो उतना नहीं. That's why we have replaced this whole thing with the entrance examination setup. Right. तो ये तो रीजन ही वही है. बट हाँ, अब्रॉड में तो दे आर वेरी biased on, yeah, and particular as well on the basis of the marks that you get. उसके अलावा इंग्लिश टेस्ट जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसका स्कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके. IELTS, TOEFL, Cambridge, English test वगैरह वगैरह बहुत टाइप के टेस्ट होते हैं. Several universities have their specifications listed कि कितना मार्क्स किस टेस्ट में चाहिए, etc. etc. Okay. But इसके अलावा and these tests are very costly. तो 15-20 हजार का एप्लीकेशन ही इस टेस्ट का रहता है. तो one way to avoid this test is to apply for waiver of English test. अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे? So different universities have different criteria. For example, Penn State में I got a waiver on the ground that English has been my first language in my undergraduate years. ठीक है? तो this was the only criteria वहाँ पर. अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल लीड्स में जो क्राइटेरिया था, यू कैन ऑप्ट फॉर अ वेवर इफ यू कैन शो एविडेंस ऑफ इंग्लिश बीइंग योर फर्स्ट लैंग्वेज सिंस योर हाई स्कूल. तो वहाँ 3 मेरे एविडेंसेस लगे, हाई स्कूल का, 12th ग्रेड का एंड अंडर ग्रेजुएट. अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा उन स्टूडेंट्स को जो रीजनल बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई भी और रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हैं. ओके. वेवर तो फिर they'll have to mandatorily apply for IELTS, TOEFL, जो भी स्कोर है. हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है. कुछ यूनिवर्सिटी 6 रखती हैं, कुछ 6.5, कुछ 11. उसको देख लेना होता है कितना आपको स्कोर चाहिए. डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज. ज्यादा रैंक की यूनिवर्सिटी ज्यादा वो खोजती है स्कोर. अब अगर आपने वेवर के लिए अप्लाई कर दिया है तो भी हो सकता है, देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी दैट योर एप्लीकेशन फॉर वेवर माइट बी रिजेक्टेड. So it depends solely on the decision of the higher education institution. But for me, Leeds में it was a provisional waiver subject to that I show my marks that I received in the subject English in 10th and 12th standard. तो 10th में तो 10 था और इधर 96 था, तो I got a waiver. So it depends. ये है. उसके अलावा it also depends on the recommendations that you are presenting. ठीक है? तो अगर make sure to contact those people who you think can draft a good recommendation letter. If you think that they can't draft a good recommendation letter, आप छोटी यूनिवर्सिटी हो, आपको recommendation letter तो चाहिए ही चाहिए. अगर वो ठीक से नहीं अगर ड्राफ्ट कर पा रहे हैं, आप बिजी हैं, जो भी, most of them will say कि आप ही ड्राफ्ट कर दो और I'll send. That's also a good way. हाँ जी. But I wouldn't say that's the best way. अगर आप जान रहे हो कि कोई recommendation देने वाला जो भी है फैकल्टी, वो इतना भी मतलब
टाइम नहीं निकाल पा रहा है कि आपको रिकमेंडेशन लेटर खुद से लिख के दे, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू सर्च फॉर अदर पीपल हु कैन गिव योर रिकमेंडेशन लेटर. अब यहाँ पर भी डिस्पैरिटी आ जाती है. इफ यू आर इन अ बेटर इंस्टीट्यूशन यू हैव गुड रिकमेंडेशंस, बस. बट ये है कि योर the success of your application doesn't depend on the quality of recommendation, but अगर absolutely बिल्कुल खराब ही रहेगा recommendation या तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. अब यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या रहता है कि यू विल नेवर नो व्हाट द पर्सन सेंट, तो वो डायरेक्टली रिकमेंडेशन उनकी वेबसाइट पे देना होता है. कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इन लोगों का डायरेक्टली जाता है. सो समटाइम्स यू माइट इवन नॉट नो. तो यहाँ पर एक स्मार्ट मूव करिए. अभी किसी अगर फैकल्टी से आपका अनबन है तो उनसे तो बिल्कुल ही मत लेवाइए. हाँ जी, तो ये अच्छा है. and very especially for students like us who only had online education and even in LL. Exactly. Right. Not many people know you, so how will you get 4 or 3 recommendation letters? Some universities ask for as many as 3 or 4. तो 2 तो फिर भी आप निकाल लोगे कहीं कहीं से, अंडर मतलब 1-2 टीचर दे देते हैं. तो इसीलिए इट्स बेटर कि अगर आप LLM जा रहे हो उसके पहले अगर कहीं काम अगर आप कर रहे कर लो तो आप अपने एम्प्लॉयर का रिकमेंडेशन ले सकते हो. ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली. तो नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस, क्वालिटी भी बढ़ जाती है, तो थोड़ी आसानी हो जाती है. एंड ऑल्सो इट्स नॉट कि प्रेफर किया जाता है वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों को, बट एक काइंड ऑफ बायस तो हो ही जाता है. अगर ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस वाला कोई है तो वो तो ज्यादा प्रेफर होगा. नहीं बिल्कुल राइट. नहीं आई गेट दैट माइंडसेट. वो आई थिंक हर जगह, इट्स नॉट जस्ट लॉ. I think that's everywhere, right? So in last, I would just like to ask you that how much would you recommend people entering the academic field of law? How do you think it's a good option, or do you think it should actually turn out to be one of the first priorities for a lot of kids? Because usually, जैसे आपने बताया आपको भी था पहले litigation करेंगे, judiciary करेंगे, then you ended up in the academic circle. But how is it? Like, how would you say your experience has been till now as a lecturer? Yeah, it's been great. Also because my mom is a professor, so I feel even more even happier कि चलो वही line अपना पकड़ लिया है जो मम्मी का है. But honestly speaking, if you want to explore other avenues before you enter the academia, that will be better. तो academia में भी इतना competition है, इतना research oriented हर चीज हो गया है कि you will feel a bit lost if you don't have prior working or teaching experience. तो थोड़ा एडजस्ट करने में, पेस पकड़ने में थोड़ा टफ हो जाता है. तो व्हाट आई वुड से कि अगर LLM आपने कर लिया है, नेट अगर इंडिया ही में काम करना है, नेट का एग्जाम तो बिल्कुल क्वालिफाई कर ही लीजिए. I haven't still qualified, will apply the next year. तो वो तो आप लोग कर लीजिए. ज्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वो तो मैंडेटरी है. इट्स नॉट मैंडेटरी इन जिंदल, सो इट वर्क फॉर मी. ओके, तो वो तो आप कर लीजिए. उसके बाद अगर आप बिल्कुल जस्ट एकेडमिया में जाना है कि नहीं जाना है, इस थॉट को बार बार सोच रहे हैं क्या करना है, तो आई वुड से घर पे बैठे रहने से बेहतर है कि डू समथिंग. लिटिगेशन ही एक बार एक्सप्लोर कर लो, या अगर जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइड बाय साइड थोड़ा लिटिगेशन भी प्रैक्टिस, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लो. तो इट विल ऑलवेज गिव यू अ क्लियरर आइडिया कि अब आगे जुडिशरी करें कि नहीं करें, ये लिटिगेशन में ही आगे चलें या इसको छोड़ें. अब 5-6 साल बाद हो सकता है लिटिगेशन करने के बाद आपको आए कि हो गया, अब हमको लगता है कि आई शुड गो फॉर एकेडमिक्स. तो वो और बेहतर रहेगा एज एन एकेडमिशियन, बिकॉज देन यू विल इम्पार्ट टू द स्टूडेंट्स अ मोर प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ द लॉ दैट यू टीच एज अपोज टू हार्डकोर एकेडमिशियंस. तो वो बड़ा एक प्लस पॉइंट रहता है, एंड स्टूडेंट्स प्रेफर दैट, दे एंजॉय इट. CPC वगैरह जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, हार्डकोर एकेडमिशियंस उनका नहीं अच्छे से पढ़ा पाए. प्रैक्टिशनर्स दे विल एस इट. So that is what one very major advantage of this field, कि कोई ऐसा एज लिमिट इतनी as such नहीं है. जितना अगर आप प्रैक्टिस करके भी कभी अगर आप प्रोफेसर बनना चाहो, that's a very good opportunity, or a very good basically option. Okay. Yeah. अभी तो I am pursuing my doctoral degree from NLU Delhi. वहाँ we have one candidate who has been practicing for like 17 years. Wow. And he recently completed his LLM, and now he has started his PhD. So the next thing that he wants to do is go for academics.
Okay. So that's also a very good way. I mean, you have the best of both the worlds. Of course, of course. And you're getting to experience literally every Exactly. aspect of it. That's great, genuinely. So I think that's a very good way of summing up the entire thing. And thank you so much, ma'am. I would just like to really, really offer our gratitude कि आपने इतने अच्छे से बताया, आप अपने experiences भी share करें हमारे साथ, which is very important because जब कोई actually बताता है that उनका कैसे experience रहा है, उन्होंने क्या किया, what difficulties they faced, we can make more informed decisions. So thank you so much for that. And I hope this session helps a lot of students like me. And I hope that hum sab ek informed decision le. And Jaisi ma'am ne bataya hai that all your decisions have to be well researched. We heard how she said that, she experienced certain problems and how we can learn from them. So what I understood out of the entire thing was that, make a very well researched choice. In terms of preparation, grades are extremely important. Do not overlook that. Try to make the most of your online education, hopefully, which will soon turn into an offline education. And start preparing early on. Don't procrastinate with your LLM applications. Start researching now, start preparing, make up your mind. एक्सप्लोर करें, बात करें, जैसे हमने मैम से बात करी है, आप भी लोगों से बात करें. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सूट्स यू, व्हाट डजंट सूट यू. यू इवन हर्ड के यूएस एंड यूके में क्या डिफरेंस है, क्या वहाँ पे एक कल्चर रहता है, एटमॉस्फेयर कैसा है, को स्ट्रक्चर क्या है. सो ग्रेट सेशन. थैंक यू सो मच मैम. And we hope that we can have you back soon enough and have longer conversations with you. So thank you so much. And we'll see you soon. Thanks a lot for having me. Thank you. See you. Take care.